Good morning, students. Today we are going to discuss about various policies of dividend. Now, the first policy of dividend is a Volcker model, which is a relevant theory. Under this theory, we can say that we have a dividend policy is important because it have an impact in our value of the firm. It going to affect the value of the enterprise. Whatever dividend we are declaring, whatever dividend policy we are choosing, they have a great impact in the value of the enterprise. That's why the Volcker model said the dividend policy is relevant. It is important to concern. The investment policy of the firm cannot be separate from its dividend policy. Both are according to Volcker model interrelated. अगर आप appropriate dividend policy choose करते हैं, if you take a right decision, it means you are able to increase the value of your enterprise. Ultimately, the market price of your shares also going to increase. Here, in this policy, we have certain assumptions like internal financing. All investment financing are done through retained earning. We are not going to take fund from the outer world. Then we have a constant return on investment and cost of capital. It means there is no change in the cost of capital and return and the risk perception of the of your investors. And firm has an infinite life. Under this approach, we are going to calculate the market price of the share by this formula. Try to understand this formula. D is your dividend. Dividend plus retain आपका rate of return divided by your cost of capital as compared to your cost of capital, how much return you are getting, multiply by E minus D. E minus D means earning per share minus dividend whatever you have declared. It means it is a routine earning that you are invested in your firm divided by cost of capital. Okay, in this how you are going to take decision? See, firm can maximize the market price or market value of the share by adopting these rules. If your rate of return is greater than your cost of capital, it is advisable that you will invest 100%. Okay, retention ratio is 100%, that means the payout ratio is only 0. आप कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रहे, आप सारा का सारा क्या कर रहे हैं, अपने फर्म में रिटेन कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू. और अगर आपकी कंडीशन इनवर्स है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर देन रेट ऑफ रिटर्न, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप 100% पे आउट रेशियो रखें. मीन्स आप 100% जितना आपने अर्निंग किया उतना डिविडेंड में दीजिए. और अगर दोनों बराबर है तो इट इज़ इररिलेवेंट, then this dividend policy become irrelevant. Okay, it have no impact, no effect on the market price of the share. Now see this with the help of numerical. Here following we have available information like earning per share, which is known as E, rupees 10 which is constant, cost of capital is 10% which is also constant. Now find out the market price of the share under different rate of return. 8% अगर आपका rate of return हुआ, 10% अगर rate of return है और 15% अगर rate of return है, तो what will be your market price of the share. और under different payout ratio. payout ratio means कितना आप dividend declare कर रहे हैं. ठीक है, तो based on that you are going to take decision. And here payout ratio is 0%, your 40%. 0% means आप कुछ भी नहीं दे रहे डिविडेंड के फॉर्म में, या 40% आप डिविडेंड दे रहे हैं, या 80% दे रहे हैं, और यहाँ 100% आप डिविडेंड जब डिक्लेयर कर रहे हैं. रिमेंबर पे आउट रेशियो इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू
Payout ratio means a dividend paid to the shareholder divided by net profit after tax या earning जो भी आपकी थी. Okay, now I show the calculation of only one combinations, and after that I make a table. Based on that you need to solve it. आपको पूरी कैलकुलेशन एग्जाम में दिखानी होती है, ठीक है. लाइक दिस हमने यहाँ अज्यूम किया है आपका रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई वो किसकी दिखाई है, रेट ऑफ रिटर्न जो 15% अगर है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%. ओके, इन दैट केस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिविडेंड कितना हुआ, 40% पे आउट रेशियो है, तो 40% ऑफ द अर्निंग, तो 4 इज योर डिविडेंड. ओके, क्योंकि 10 आपकी अर्निंग थी. पुट दिस फिगर इनटू फॉर्मूला. 4 is dividend plus your return is 15%, 10 is your cost of capital, and whatever you have retained means earning minus dividend, whatever you declared, divided by cost of capital. It means you get 130 rupees. Okay, now how you are showing this calculations to simplify. Dividend हमने यहाँ टेबल बनाई है, डिविडेंड पॉलिसी की अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू योर वॉल्टर मॉडल. यहाँ पर हमने ले रखी ग्रोथ फॉर्म. ग्रोथ फॉर्म मीन्स जहाँ रिटर्न आपका ज़्यादा है 15% और कॉस्ट आपकी कम है 10%, और अर्निंग क्या है 10, ये तो कांस्टेंट है आपकी 10, और आपकी जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट है 10%, 10%, 10%. ये है नॉर्मल फॉर्म जहाँ रिटर्न और कॉस्ट दोनों बराबर है 10-10. एंड ये है डिक्लाइनिंग फॉर्म जहाँ रिटर्न कम आ रहा है और कॉस्ट ज़्यादा है. ठीक है, फॉर्मूला पुट करा, यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू. हमने ईयरली वैल्यू कैलकुलेट की थी 130, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था 40%. ठीक है, और आपकी जो अर्निंग थी वो कितनी थी 15 रेट ऑफ रिटर्न, तो आपने देखा था 130 आया था. वैसे ही आपने इन सबको कैलकुलेट करना है एंड देन पुट इट इनटू टेबल. अगर जीरो पे आउट रेशियो रखा तो ग्रोथ फॉर्म में 150, बैलेंस फॉर्म में 100 और डिक्लाइन फॉर्म में 80 मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है. तो यहाँ पर जो है जीरो पे आउट रेशियो रखने में ग्रोथ फॉर्म में सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पर हो रहा है आपका, ग्रोथ फॉर्म में फ़ायदा कहाँ है, जब आपका पे आउट रेशियो कितना है 0. ठीक है, तो 150 इज़ द हाईएस्ट प्राइस. यहाँ पर 130 अगर पे आउट रेशियो रख रहे हैं, अगर आप 80 रखेंगे तो 110 आएगा, और अगर आप 100% जो है पे आउट रेशियो रख रहे हैं तो 100 ही प्राइस है. तो आपके लिए क्या एडवाइजेबल है, अगर ग्रोथ फॉर्म है तो ज़ीरो पे आउट रेशियो रखिए. ठीक है, अगर आपकी इंडिफरेंट है, देखिए 100 100 100, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका रेट ऑफ रिटर्न बराबर है, और अगर आपका डिक्लाइनिंग फॉर्म है एक्सक्यूज मी, डिक्लाइनिंग फॉर्म में क्या होगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और रिटर्न कम है. तो आप देख रहे हैं 100% पे आउट रेशियो रखने में आपकी सबसे ज़्यादा प्राइस आ रहा है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो इट मीन्स हमें 100% अपना पे आउट रेशियो रखना होगा. ठीक है, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल नाउ. ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्टर मॉडल क्या कह रहा है आपका, कि आपको जो है अपना 100% पे आउट रेशियो रखिए अगर रिटर्न ज़्यादा है, सॉरी अगर आप रिटेंशन रखिए, और अपना पे आउट रेशियो 100% रखिए अगर आपके पास आपकी फर्म डिक्लाइनिंग है, आपका रिटर्न कम आ रहा है. एंड इट इज़ अ रिलेवेंट, क्योंकि डिविडेंड कितना हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो हम कितना रख रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर में पड़ रहा है. अवर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज गोइंग टू चेंज. फाइन, अंडर दिस वी हैव सर्टेन लिमिटेशन. फाइनेंसिंग बाय रिटेन अर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आप बहुत कम यूज़ कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे, ऐसा होता नहीं है. ठीक है, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ दिस. और दूसरा कांस्टेंट रिटर्न और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो विद द मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो रिस्क आपका बढ़ रहा है, एंड जब रिस्क बढ़ रहा है तो कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट गोइंग टू चेंज. जहाँ रिस्क होगा ज़्यादा वहाँ कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आपकी चेंज होगी. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ डिविडेंड, दैट इज अ गॉर्डन मॉडल. Thank you for the day, beta.
If you have any doubt,